अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो कर्नाटका टूरिज्म से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कर्नाटका टूरिज्म से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। India is renowned the world over for its unity in diversity. And there is one state that exemplifies this par excellence. One state that plays home to multiple worlds, thriving together in harmony. One state that has become a hotbed for tourism, because no matter what colors your world, you'll probably find it here, in Karnataka. The film aims to capture the glory of the many worlds that call Karnataka home. From ancient history to breathtaking geography. From the Western Ghats to the Western coastline. From cultures that have stood for centuries to modern cosmocultures. From bustling metropolises to pristine nature. From a thriving economy to heartfelt hospitality. Whatever you seek, whatever your interests, there is something for everyone in Karnataka. Some of the most powerful empires of ancient and medieval India thrived on this very soil. Monuments that pay tribute to the glory of these erstwhile empires are amongst the most popular historic attractions in the world. Hampi is one of the most sought-after destinations with its UNESCO heritage tag and dating back over 500 years. While Badami and Pattadakkal are glorious epitomes that date back over 1,000 years. The intricate workmanship of the Vijayanagar empires and the Chalukya dynasty can still be witnessed after all these centuries. Belur and Halebid are world famous too for its architecture, craftsmanship, and rich heritage. A fitting tribute to the Deccan style of architecture is the over 400-year-old Gol Gumbaz in Bijapur. Like the largest monolithic statue of the Gomateshwara at Shravanabelagola, there are cultural and religious centers that still attract devotees from the world over. Talking of living history, the opulence of the Mysore Palace talks of a more recent past. In fact, the Mysore Palace gets the second highest footfalls when it comes to foreign tourists in India. Get transported to a world where kings and queens ruled, where history comes alive in a landscape that is bountiful. Talking of landscapes in what is the 7th largest state in India, the variety is nothing short of breathtaking. Nurtured by the nourishing waters of the Krishna or Bhadra and the Kaveri and their many tributaries that make for some of the most beautiful waterfalls in the country. Whether it's the sheer volume of the monsoon-fed Shivana Samudra or the defying heights of Jog Falls, they make for spellbinding views. Talking of heights, Karnataka also plays home to the Western Ghats. The epic mountain range that runs north to south on the western half of the state, making for scenic beauty that is unparalleled. The hill stations of Coorg and Chikmagalur, to name a few, are immensely popular for their locales, climate and outdoor travel experiences
for the discerning traveler. Considered one of the most biodiverse ecosystems in the planet, it boasts several endemic species of flora and fauna, and also plays home to 27 sanctuaries and 5 national parks. Being highly sought after for its large number of elephants and tigers. Nagarhole National Park, along with Bandipur, make for one of the largest tracts of unbroken forests in the country. Kabini has emerged as the most popular destination amongst wildlife enthusiasts. With a range of safari lodges, including several luxury and budget options, boat and jeep safaris, wildlife tourism in Karnataka has boomed over the last few years. With the mountains gently running into the Arabian Sea, Karnataka is also blessed with over 300 kilometers of pristine coastline. Beaches abound with sun, sand and surf. It is a beachgoer's paradise. While Gokarna's own beach is the most iconic, there are plenty of quiet and mesmerizing beaches strewn along the coast. With adventure options slowly cropping up, whether you are seeking some adrenaline or solitude, Karnataka's geography has something for you. If your world is filled with colors, then there is plenty for you to see in Karnataka. Talking of plenty, if there is a city that is known for its plenitude, it has to be the capital Bengaluru. Not only was it voted the most dynamic city, but it has also been one of India's fastest growing cities for over a decade now. It is also amongst the most diverse cities in the country, thereby opening up many avenues within the city. Pub City, Culture City, Garden City, Silicon Valley of India, Education City, Art Capital, and many, many more. Bengaluru has become one of the most popular cities, not just in India, but in the world. Karnataka is paving the way forward to a melancholic tale of royalty with the Golden Chariot, a luxury train that indulges you with the best of Karnataka. From heritage festivals such as Dasera and the Mahamastakabhisheka that draw pious pilgrims from all around, to the latest music festivals that gather revelers, everything from ancient culture to modern marvels. There is one thread that holds everything together, no matter where you go in the state. And that is the heartfelt hospitality of its people, making for warm welcomes, hearty food, and everlasting memories. Dotted with a whole host of staying options, from luxury hotels to eco-resorts, from exotic homestays to budget accommodations. So whatever your budget, Karnataka will gladly welcome you. No matter where you call home, you cannot be too far away from reaching our shores. With one of the busiest airports, the International Airport at Bangalore is connected directly to Europe, UK, Asia, and even to the US. With multiple airports, a large railway network, and an extensive road network, Karnataka is well connected within and to the outside world, with services ensuring that no matter what your destination, you will find it accessible. So the next time you plan a holiday, welcome to our world. Remember, this is but a glimpse of the many worlds that call Karnataka home. Maybe you'll discover your own, but for an unforgettable holiday, all you need to remember is one state, Karnataka. बहुत ही खूबसूरत। मैं कहूँगी क्या ब्यूटी, मतलब अच्छा, मैं ये कहूँगी कि ऐसी ब्यूटी कि शायद मैं कहूँगी पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं होगी जो इंडिया में। अच्छा, ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ख़ास हैं जो मैंने नोट किए ज़्यादातर वीडियो में।
इस वीडियो में। एक तो हिस्टोरिकल चीज़, ठीक है, बहुत ही पुराने दौर की एशियंस टाइम की बिल्डिंग्स वगैरह, मंदिर वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, और ये मूर्ति देखी थी आपने इतनी बड़ी। अच्छा, सेकंड चीज़ मैंने ये देखी, वाइल्ड लाइफ, जंगलात, एनिमल्स। अच्छा लोग, हाँ, अच्छा लोगों का जो है ना यहाँ पे रुझान बहुत है, यानी कि टूरिज्म बहुत है, फॉरेनर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ, शायद इसीलिए, और ये एक बड़ा रीज़न है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जो मैं इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ, तो मुझे एक मेरा मकसद, एक लाइन में अगर मैं कहूँ मैंने कुछ अखज़ किया, वो ये कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे आगे इंडिया, सिलिकॉन वैली इंडिया, ठीक है, बेंगलोर सिटी। इसके अलावा देखा टूरिज़्म के हवाले से मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री इंडिया, मिसाइल वगैरह के मामले में इन चीज़ों में सबसे आगे इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और भी हमने देखा, वैक्सीनेशन की एक वीडियो देखी जिसमें 1 बिलियन वैक्सीनेशन हो चुकी है इंडिया में, यानी कि हर काम में सबसे आगे, सबसे तेज़, कोई भी महामारी हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी वबा हो, सबसे आगे इंडिया, सबसे जल्दी इंडिया उसको रिकवर कर रहा होता है। तो हर चीज़ में सबसे आगे इंडिया। तो इंडिया, हम ये नहीं देख रहे, इंडिया मरकज़ बन चुका है, सेंट्रल बन चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया मेट्रो में सबसे आगे इंडिया हब है मेट्रो का। तो अगर सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक्स, वही तो मैं कह रही हूँ, सबसे ऊंचे ब्रिजेस, बिल्कुल वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिजेस। आपने एक वीडियो देखी थी कि इंडिया ही की वजह से पूरी दुनिया में कितना असर पड़ सकता है। मैं ये कहूँगी इंडिया ही की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, वो इस हद तक अब इंडिपेंडेंट हो चुका है इंडिया, और दूसरों का इतना, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट वगैरह, इतना इन्वॉल्व हो चुका है, इतना इनपुट हो गया इंडिया का, कि मैं ये कह रही हूँ टूरिज्म भी आप देख लें, बिल्कुल कितना टूरिज्म है। अच्छा, अभी इस वीडियो में देखते हैं कि टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। इस वीडियो में हमें टोटल सिर्फ कर्नाटक के बारे में बताया गया, जो हमने चीज़ें देखी या जो चीज़ें हैं उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो पुराने दौर की जो चीज़ें हैं, पुराने जो, अच्छा इस पे आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, जो वो ज़्यादातर जो ये ना पुराने दौर की चीज़ें हैं या इस तरह की चीज़ें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक इतना बड़ी वो जो बिल्डिंग थी, मंदिर था, और जो उसमें शामिल हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज, उसमें शामिल था। अच्छा, बहुत ही बड़ा था वो, बहुत ही बड़ा। मैं आपको कि विरासत के लिहाज से ले लें या सकाफत के लिहाज से ले लें, मुझे लगता है भारत का कोई सानी नहीं। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रखेज़ है, ये जो ज़मीन है ना, ज़रखेज़ तो एक तरफ ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, मानते हैं, वो वाला ज़रखेज़ नहीं, एक तो वो ज़रखेज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो सकाफत और ये जो विरसा मिला है, विरासत में इतना ओल्डेस्ट कंट्री आपको लाकर दिखा दे मुझे, मैं कह यही तो कह रहा हूँ करके लाकर दिखा दे कि इतना हज़ारों साल, 1500 साल, 2000, 6000, 5000 साल पुरानी चीज़ें हैं, बिल्कुल। और इनकी अपनी एक जिनका हमने इन वीडियो से पहले, अच्छा, मतलब हमारे वहम गुमान में भी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि शायद कोई कौम हम ले लें, कोई भी कौम, कोई भी नेशन ले लें, उनकी एक पीछे की आबाओ अजदाद की जो वो है हिस्ट्री, अगर वो उनसे पीछे, तो मैं कहता हूँ कि शायद वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकेंगे, जितना ज़्यादा अगर इंडिया की जो हिस्ट्री के बारे में अगर इनसे पूछा जाए, तो इन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में जितना पता है, या जो इनके हीरोज़ गुजरे हैं, या जो इनके जो क्या कहते हैं अपना स्टोरीज़ हैं रही हैं, इनकी जितनी पुरानी हिस्ट्रीज़ है, मेरे ख्याल में शायद दूसरी जो कौमें हैं ना, हाँ, एक हिस्ट्री ये कि बताया जाए, लोगों को बोला जाए, लोगों को आकर्षित किया जाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, हिस्ट्री ऐसी कि लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं, खुद दिलचस्पी लेते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं, कॉर्नर्स तक देखने आते हैं, देखते हैं, साइट्स को देखते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ आज के दौर में इंडिया ऐसा कंट्री बन चुका है जो पूरी दुनिया के मुल्कों को झंझोड़ सकता है, इस हद तक पावरफुल हो चुका है, देखें आप इंडिपेंडेंट हो चुका है, देखें जब हर लिहाज में। टूरिज्म आती है तो जाहिर सी बात है उससे इनका बंद करते हैं वो अपना, तो फिर आप बताएं। नहीं, लोग देखना चाहेंगे, और जाहिर सी बात है कि उससे फिर उन मुल्क की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल बन गया है, बिल्कुल, हर कोई जुड़ चुका है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत बड़ा एक एरिया है कर्नाटका का जो सी साइड लगता है, इनके यहाँ सी, ये इस स्टेट पे सी बहुत है, बीचेस बहुत है, लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर दूसरा ये है कि वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे भी लोग घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा ये चीज़ तो एक अपनी हो गई साइड पे, जो नेचर ने दी है, लेकिन नेचर ने दिया है बस वहीं पे शुक्र अदा नहीं किया है इन्होंने। कहते हैं ना कि अल्लाह दिया हुआ है तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया,
उनकी अल्लाह दे अपनी नहीं सकते। तो उनकी अपनी मेहनत देखें बेंगलोर शहर की शक्ल में मेंटेन करके रखा है। अच्छा आप इनकी साइट्स भी देखें, ठीक है, जो भी टूरिज्म के लिहाज से जो अट्रैक्शंस हैं उनको किस हद तक मेंटेन करके रखा हुआ है। वो हो चाहे गई, कोई ठीक है। टेंपल हो, चाहे कोई फोर्ट हो, लेकिन उसके कुछ भी हो। अलावा उसके अलावा जो तरक्की है, मतलब जो डेवलपमेंट है, उसमें भी आप देख लें कि बेंगलोर सिटी एक ऐसा सिटी है जिसको पूरी दुनिया एक जानती है। और बेंगलोर इन फ्यूचर सिलिकॉन वैली, इन फ्यूचर मतलब दुनिया की सिलिकॉन वैली बनता जा रहा है। और आईटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बेंगलुरु का एक ऐसा नाम है, इतना नाम है। अच्छा मैंने एक शख्स को बताया, पता नहीं आपको शायद बताया था कि बेंगलुरु के नाम से स्वीट्स कराची के अंदर मिठाई, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से माइग्रेट हुए थे, तो अपने ही मतलब बड़ी मतलब मोहब्बत देखें, इसको क्या कहेंगे कि अगर मैं वहाँ से आया हूँ और कराची में मैं मिठाई की दुकान खोल रहा हूँ तो मैं अपने बेंगलोर के नाम से मिठाई की दुकान खोलता हूँ, तो मतलब एक लव होता है, जुड़े हुए। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो कर्नाटक के हवाले से दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।